वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। So Vinod bhai, are you doing the summary today? Yes, Swami, ready. अच्छा चलो। आर्टिकल का नाम क्या है? The triangle of love. अच्छा, ट्रायंगल ऑफ लव। ट्रायंगल ऑफ नहीं, एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑफ पराभक्ति। ठीक है, पराभक्ति आर्टिकल बिल्कुल पराभक्ति है। इतना ऊंची कवर भगवान बात, स्वामी जी इतने हाई लेवल पे बात कर रहे हैं इसमें कि बस। चलिए। हाँ, The article triangle of love, we may represent love as a triangle. There can be no triangle without all its three angles. And there can be no true love without its three following characteristics. The first angle of the triangle, the love, is that love knows no bargaining. Wherever there is any seeing for something in return, there can be no real love. It becomes a mere matter of shopkeeping. The real bhakta loves the Lord because he is lovable. There is no other motive originating or directing this divine emotion of the true devotee. Begging is not the language of the love. To worship God, even for the sake of salvation or any other rewards, equally degenerate. Love knows no reward. Love is always for love's sake. The bhakta loves because he cannot help loving. This nature of real love is the first angle of our triangle. Ask not anything in return for your love. Now we look the second angle of the triangle of the love. Is that love knows no fear. Those that love God through fear are the lowest of the human beings, quite undeveloped as a man. They worship God from fear of punishment. It is a degradation to worship God through fear of punishment. Such worship is, if worship at all, is the crudest form of the worship of love. Love conquers all fear. If a man thinks he is little nothing, fear will surely come upon him. Love and fear are incompatible. God is never to be feared by those who love him. The third angle of love triangle is that love knows no rival, for in it is always embodied the lover's highest ideal. True love never comes until the object of our love becomes to us our highest ideal. Now we talk about the highest ideal. Highest ideal of every man is called God. Ignorant or a wise, saint or sinner, man or woman, educated or uneducated, cultivated or uncultivated, to every human being, the highest ideal is God. All the active manifestations of human nature are the struggles of those ideals to become realized in a practical life. It may be after hundreds of births, after struggling through thousands of years, that man finds that it is vain to try to make the inner ideal mold completely external condition and square well with them. After realizing this, he no more tries to project his own ideal on the outside world. This ideally perfect ideal, embraces all lower ideals. That ideal which man and woman commonly worship is what is in themselves. Every person projects his or her own ideal on the outside world and kneel before it. That's why
we find that men who are cruel and bloodthirsty conceive of a bloodthirsty God because they can only love their own highest ideal. That is, the good man have a very high ideal of God. I will give you my all, and I don't want anything from you. Indeed, there is nothing that I can call my own. When a man has acquired this conviction, his ideal becomes one of the perfect fairness of the law. This grand ideal of religion, of love, is worshipped and loved absolutely as such without the aid of any symbols or suggestions. This is the highest form of the Parabhakti, the worship of such an all-comprehending ideal as the ideal. All other forms of bhakti are only stages on the way to reach it. At last, aspirant begins to think that it is vain to try to realize the ideal in external objects, that all external objects are as nothing when compared with the ideal itself, and in course of time, he acquires the power of realizing the highest and the most generalized abstract ideal entirely as an abstraction that is to him quite alive and real. He is the highest ideal of love, and that is sufficient for all his purposes. When I, by mistake, think that I am a little something, may love becomes particularized and narrowed. The mistake consists in making the sphere of love narrow and contracted. When the heart is purified and cleansed and filled to the brim with the divine nectar of love, all other ideas of God become simply puerile and are rejected as being inadequate or unworthy. Such is indeed the power of Parabhakti or Supreme. It's impossible to express the nature of the Supreme and absolute ideal of a love in a human language. However, some of the great written on Parabhakti have tried to understand and experience the divine love in so many different ways. The lowest form for which this love is apprehended is what they call the peaceful, the Sant Bhav. The Sant Bhakta is calm, peaceful, and gentle. The next bigger type is Dasya, servantship. The attachment of the faithful servant unto the matter is his ideal. The next type of love is a Sakhya, friendship. The innermost secret of our hearts we may place before him with the great assurance of safety and support. The world is just a playground, and we are having good fun, having a game. And God is with us playing all the while, and we are with him playing. The next is Vatsalya Bhav, loving God not as our father, but as our child. 1,000 lives parents will sacrifice for that one child of theirs, and therefore God is loved as a child. There is one more human representation of the divine ideal of love. It is known as a Madhura, sweet, and it is the highest of all such representation. In this sweet representation of the divine love, the God is our husband. The love which is in you, if it is given to any human being, will sooner or later bring pain and sorrow as the result. Our love must therefore be given to the highest, one who never dies and never changes to him, in the ocean of whose love there is neither ebb nor flow. God is one goal of our passions and emotions. If you want to be angry,
Be angry with him. Child your beloved. Child your God friend. Child means Datna. The Bhakta takes up also the idea of legitimate, legitimate love because it is so strong. Nature of this love is such that the more obstruction there are for its free play, the more passionate it becomes. It becomes. In a conclusion, when this highest ideal of love is reached, freedom, salvation, nirvana, all are thrown away. Let me the bond again and again, and be thou ever my love. The world calls him mad. Ramakrishna's answer, my friend, the whole world is lunatic asylum. Lunatic asylum means pagalkhana. Some are Asylum, mad, asylum, asylum. asylum. Ah. Some are mad after worldly love. Some are after name. Some after fame. Some after money. Some after salvation and going to heaven. In this big lunatic asylum, I am also mad. I am mad after God. I think my madness is after all the best. This blessed madness of divine love alone can cure forever the disease of the world that is in us. We all have to begin as a dualist in the religion of love. To him, God exists as all this, and the last point of the progress is reached when he feels that he has become absolutely merged in the object of his worship, and he realizes at last the beautiful and inspiring truth that we love, the lover, in inspiring truth that love, the lover and the beloved are one. Us too. Swamiji, Okay. this summary, thanks to Yes. Dr. Pankaj sir helped me to do this summary. Okay. 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 That is why I could do this. Thank you. Thank you. Thank you. Pretty good. It was a hard task for me. Pankaj bhai helped me. Congratulations to both well done, you. well done. बहुत अच्छा हुआ. Congratulations to you and also to Pankaj bhai. Just a minute. Just a minute. ये मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आते हैं, लेकिन ये ओपन है और यहाँ पे बातचीत जो चलती रहती है तो उसके कारण थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, पर क्या करें, ये जो है ना, ये हमेशा समस्याओं के भीतर ही हमको चलना पड़ेगा. We have to struggle between problems and difficulties. मुझे याद है स्टूडेंट एज में भी यही था कि एक बार हमने जाकर जब कंप्लेन किया था तो गुरुजी ने यही कहा था कि you have to struggle, you have to act and do साधना वगैरह जो है ये सब बाधाओं के बीच में ही होती हैं, याद रखिए. बिल्कुल खाली हो जाएंगे, एकांत में जाएंगे, पहाड़ में जाएंगे, पर्वत में जाके रहेंगे, कोई नहीं, वहां भी समस्याएं हो जाएंगी. तो डोंट वरी अबाउट इट, जैसी सिचुएशन है उसी में हमको करना है. तो ये समरी ठीक हो गई. दोनों शाह ने, पंकज शाह और विनोद भाई ने किया है. अब शुरू करें क्वेश्चंस. कुंडू जी महाराज. महाराज जी प्रणाम. महाराज जी कुंडू Maharaj, after this portion of the article is so full of grand and sublime ideas that it defies our comprehension. Some questions remain. In my prayers, I don't ask for favor from God, nor am I afraid of God. Yet, the love for God do not flow naturally. Why it is so? अरे पॉइंट इज दैट वी लव जो है, गॉड जो है वो हमारी इमेजिनेशन की चीज है.
We have some imagined idea. We don't know what is God. We know our mother. We know our father. हम अपने मित्र को जानते हैं तो उनको हम ऑटोमेटिकली प्रेम कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में हमने सब लोगों से सुना है और सुन के ही करते हैं। ये तो बहुत बड़े, बहुत अच्छे, एक उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान को सुन के प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। वो एक उनकी कहानी है ना, संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रसिद्ध कहानी है ना। क्या दोनों ने महाराज एक बताइए। दूसरे को कभी देखा नहीं था। संयुक्ता ने पृथ्वीराज की महानता को सुना और पृथ्वीराज ने संयुक्ता की सौंदर्य के बारे में सुना और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पड़ गए थे। तो हमारे लिए इट इज नॉट सो इजी, वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। दूसरी बात यह है कि हम बॉडी कॉन्शियस हैं और इसलिए एक डिवाइन व्यक्ति को जो देह से भिन्न है उसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्या है कि हमारा प्रेम जो है ना वो सेल्फिश लव है, जैसे बनिए जैसा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी अगर प्रार्थना करते हैं ना, तुमने यही तो बोला ना शुरू में, क्या कहा? क्वेश्चन है तुम्हारा, शुरू में क्या है तुम्हारी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है तुमने? मैं लिखा, दिस पोर्शन ऑफ द आर्टिकल इज सो फुल ऑफ ग्रैंड एंड सब्लाइम आइडियाज दैट इट डिफाइज आवर कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, बट आगे चलो, आगे बोलो। In my prayers, I do not ask for favor from God, nor am I afraid of God. Pray तो करता हूँ महाराज with all sincerity, yet the love for God do not flow naturally. नहीं, पर प्रश्न ये है कि तुम उनको क्या समझते हो? तुम पिता समझते हो, माता समझते हो या मित्र समझते हो? यही समझता नहीं होती है ना। हाँ महाराज, इसका समाधान नहीं होता है। हाँ, हम एक जनरली एक करते हैं, बस भगवान है, लेकिन मैं अपने से भगवान कौन है? मेरे पिता है, मित्र हैं, भाई हैं, सखा है, ये रिलेशन तो होता ही नहीं है। ये दृढ़ नहीं होता है रिलेशन ही नहीं होता। हाँ महाराज, यानी कौन है भगवान? मेरे पिता है, क्या समझते हो तुम? ये होता ही नहीं है। ठाकुर को क्या है, माँ जगदम्बा को माँ समझ लिया था। अब उसके बाद में वो प्रेम डेवलप होता चला गया। लेकिन हमारे पहले ही नहीं पता चलता है कि भगवान हमारे मित्र हैं या पिता है या माता है, क्या है, यही पता नहीं चलता। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है, क्या करेंगे ये? क्योंकि भगवान जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, चाहे कितना भी करो वो हमारी कल्पना के परे नहीं जाते। अरे भाई, दिलीप भाई है तो मैं देख रहा हूँ, उसको सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ दिलीप भाई कल्पना की वस्तु नहीं है ना, बिल्कुल सीधे हैं। यहाँ भगवान जो है वो कल्पना के वस्तु होने के कारण सारी समस्या होती है। ऐसे में अगर भगवान जैसे बच्चा है तो बच्चा तो माँ ने बोल दिया है तो उसको मान लेता है, और फिर भगवान से जाके वो मांगता भी है, पतंग मांगता है, मिठाई मांगता है। तो अगर वो ऐसा अगर हमारे जीवन में होवे, हम जानते हैं कि भगवान है, उनसे मांगो, ये ऐसी सेल्फिश बात भी यदि हो जावे, यह मानकर कि भगवान सच्चे हैं और हम स्वार्थी भक्ति है, अगर स्ट्रॉन्ग स्वार्थी भक्ति भी होगी तो अल्टीमेटली वो निस्वार्थ भक्ति बाद में हो जाएगी। तो ये तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, बड़ा कठिन है भगवान से भक्ति करना। हाँ महाराज जी, ये एब्स्ट्रैक्ट काल्पनिक से हम इसको रियल की तरफ कैसे ले जाएं? इसके मतलब महाराज, मतलब प्रेम तो दूर की बात है, हमारे विश्वास ही दृढ़ नहीं है। हम, यही तो बात है, वही तो मैंने कहा कि विश्वास ही नहीं है। हमने सुन रखा है कि भगवान होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, हमारा रिलेशन नहीं। एक मेरे को स्टोरी याद आ गई, वो एक बनिए की स्टोरी है। तो वो क्या है कि भगवान को रोज प्रार्थना करता था और कुछ दूध चढ़ाया करता था रोज, जैसे है ना हम लोग भी थोड़ा सा चढ़ा दिया, थोड़ा बताशा चढ़ा दिया, ऐसा करते हैं ना। तो रोज वो कुछ करके था, दूध दे देता था, दूध में चीनी मिला के
और भगवान को रोज देता था। अब एक दिन क्या हुआ, बहुत वर्षों तक होता रहा, एक दिन क्या हुआ कि बनिया तो वो चीनी जो है वो बड़े चम्मच से ज्यादा पड़ गई। अरे चम्मच तो ज्यादा हो गई, तो वो छोटे चम्मच से चीनी निकालने लगा। तब भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे यहाँ पे भी बनिया करता है, लेकिन भगवान प्रकट तो हो गए। यानी स्वार्थी भावना से भी भगवान मिल स्वार्थ की गए। भावना से भी अगर हम सचमुच भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान प्रकट हो जाए। बड़ा मुश्किल है भाई भगवान से प्यार करना। अगर हो जाए तो ये तो क्या है कि ये तो वैधि भक्ति नहीं है, पराभक्ति की बात कर ले स्वामी जी। वे भी वैधि भक्ति के आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ महाराज। हमको वैधि भक्ति के लेवल पे ही रहना चाहिए। मूर्ति बनाई है, फोटो है, और रोज थोड़ा सा अगरबत्ती जला दिया, चंदन लगा दिया, माला पहना दी, फूल चढ़ा दिया, थोड़ा नैवेद्य दे दिया, बैठकर मंत्र जप कर लिए, आधा घंटा 15 मिनट पूजा कर ली। इस प्रकार से करके धीरे 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 ये आवे भाव कि भगवान है तो है, नहीं तो बाबा बड़ा मुश्किल। चलो सेकंड क्वेश्चन, इज दैट ओके? Yes, Maharaj. Second question, Maharaj, page 92. It is said that the magistrate gods may require a good deal of proof. When one believes in God, how does it make a difference whether he worships the magistrate god or God as love personified? Why the former needs to be proved? अभी यहाँ पे आवाज, यहाँ पे कुछ क्या क्या चल रहा है। There are a lot of disturbance at my end. Because there is, क्या है, फिर से पढ़ो तो। What is the page number? Page number 92, it is said that the magistrate gods may require a good deal of proof. My question is, when one believes in God, how does it make a difference whether he worships the magistrate god or God as love personified? Why the former needs to be proved? No, I don't think, because there is no love. Love नहीं है ना वहाँ पे। Na. When there is no love, that's why probably you will need more. वो प्रश्न आएगा, what is the proof? But your question is very, all depends upon our belief. Belief. Yes, It is a question of belief and love. ठीक महाराज। तो मैजिस्ट्रेट गॉड ने, पता नहीं स्वामी जी ने क्यों कहा कि मैजिस्ट्रेट गॉड में ज्यादा प्रेम, ज्यादा प्रूफ की आवश्यकता है, और दूसरे तरफ का लव यदि भगवान से करें तो उसमें कम की प्रूफ है। आई वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट रियली आंसर दिस क्वेश्चन। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बिलीफ एंड लव। यस महाराज। एंड बिलीफ एंड लव में से लव स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए कहते हैं कि भाई मैजिस्ट्रेट गॉड में तो केवल बिलीव करके रहते हैं, तो इसलिए यू विल नीड मोर ऑफ प्रूफ। ठीक महाराज। अच्छा। And then page 96, Maharaj, Swamiji says that the idea of loving God as a child grows naturally among those sects which believe in the incarnation of God. Then he talks about Christians and Hindus. The idea of baby Jesus and Madonna were there in Catholic faith, which the Protestants removed from Christianity. So, now, is it still natural for the Christians to believe in incarnation of God? ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर मेरा क्वेश्चन है महाराज। ये मैंने I asked this question to one of my Christian friends. Yes, महाराज। Italian Christian friends I asked, and he also could not really understand it fully, but what he wrote, from that I understood that yes, the Catholics believe Christ as the incarnation of God. Yes, महाराज। Only one incarnation, और कुछ नहीं है। हाँ, हमारे जैसे बहुत सारे इंकारनेशन है, उनका ऐसे नहीं है, एक ही नहीं है, केवल एक ही इंकारनेशन है। But there is Christ is there, is the thing that there is a incarnation. Yes, महाराज। Yes, महाराज। प्रणाम महाराज। अच्छा भाई। दिलीप भाई,
जी महाराज जी प्रणाम जी। My first question is, to whom we have not seen, how we can love him without any motive, and how true love grow in our heart. पेज नंबर 87 पर है। मैंने बता दिया पहले तो कहा ना कि पृथ्वीराज और संयुक्ता की कहानी है। जी, ये तो इतिहास है, सब वो इतिहास है, ये कोई पुराण नहीं है। नहीं और जी, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, और उस समय ये टीवी नहीं थे, फोटो नहीं थे कि फोटो चला जाए। दोनों बराबर। पृथ्वीराज की बहुत प्रशंसा हुई थी, और ये संयुक्ता, दोनों एक दूसरे को प्रेम में पड़ गए थे। वो सारी कहानी है। उसके बाद में युद्ध हुआ था, नौ सब हुआ था। जी बराबर। अच्छा, बच्चे जो हैं वो भगवान की लीला सुन सुन कर प्रेम करने लगते हैं। हम्म, तो बिना देखे भी सुन सुन के हो जाता है। बच्चे जो है ना, बचपन से ही भगवान की लीला सुनते रहते हैं ना, जी जी तो उसके बाद में वो भगवान से प्रेम हो जाता है उनका, तो भगवान को जानने लग जाते हैं। तो बिना देखे भी सुनकर प्रेम हो सकता। जी महाराज, इट्स परफेक्टली फाइन। अब सवाल ये उठता है कि आपने बताया कि बच्चे कहानी सुन सुन के ही प्रेम में पड़ जाते हैं, तो बचपन से यदि उनको ईश्वर के प्रति बताया जाए तो ये संभव होता है, क्योंकि जब बड़े होते हैं ना तो उनके दिमाग में आर्गुमेंट ही आर्गुमेंट आते हैं। तो ईश्वर भक्ति के लिए बचपन से ही इस लाइन में बच्चों को लगाना चाहिए। और सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल डेफिनेटली है जी ऐसा करना ही चाहिए। बराबर जी महाराज। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज, God from fear of punishment. If there is no fear of our bad karmas, then the world will be unruly world. What we are presently suffering is because of the bad karma, and suffering is the punishment. And the punishment given is by God. So there is always a fear of element in our life. While it is written in the article that love knows no fear. Second line. देखो जी, जब तक तुमको लगता है कि भगवान मजिस्ट्रेट है हाँ और मुझे दंड देने वाले हैं, जी, और जब तक डर लगता है तब तक प्रेम नहीं है। हाँ ये समझ लीजिए कि प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, हम भगवान से डर है। भगवान हमारे लिए मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ प्रेम नहीं है, सीधी बात है। तो भगवान से डर है, भगवान से प्रेम नहीं है। अरे मास्टर साहब से बच्चा डरता है, भगवान मास्टर साहब को भगवान बच्चा प्यार करता है क्या? दिलीप भाई, जी, स्कूल में मास्टर से बच्चा डरता है कि मार पड़ेगी, हाँ तो बच्चा क्या मास्टर को प्रेम करता है क्या? नहीं महाराज जी, हमको भी बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि तुम गलत काम करोगे तो भगवान पनिशमेंट देंगे, भगवान से डरो, और भगवान से डर के ही तुम प्रेम कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं, and God cannot be a judge. एक अवस्था ऐसी आएगी, जी, एक अवस्था ऐसी आएगी हाँ तब भगवान से डर चला जाएगा। ओके हाँ, भगवान मेरे दास, मेरे स्वामी बन जाएंगे, मेरे स्वामी बन जाएंगे या मेरे मित्र बन जाएंगे। जी, हनुमान जी जैसे भगवान राम के दास बन गए, लेकिन दास भाव से प्रेम था, हाँ डरते नहीं थे। हनुमान जी रामचंद्र जी से प्यार करते थे, और राम जी भी तो हनुमान जी को प्यार करते थे। जी, तो भाव का प्रश्न है, जी, लेकिन जहां डर है वहां पे प्रेम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल।
महाराज जी, हमारे जीवन से हमें भगवान के प्रति जो डर बैठा हुआ है इसको दूर करना चाहिए। ये ऐसा है ना कि भगवान जज करता है, हमको दंड देता है, ये फीलिंग हटा देना चाहिए। दंड हमें मिलता है हमारे कर्मों की वजह से, ये फीलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ऐसा है ना? इज दैट राइट महाराज जी? बिल्कुल ठीक है। ये तो हाँ। ऐसा है ना कि शुरू में ही है, कर्मों से दंड मिलता है, तो कर्म का दंड कौन देता है? वो ईश्वर भगवान ही हमारे कर्म के फल के अनुसार देते हैं। तो भगवान को बेचारा बार बार वो दंड के लिए डर के, भगवान से डर जो है ना वो बहुत से बचपन में महाराज जी। बैठा हुआ है। इसलिए Exactly. कितने लोग हैं जो भगवान को प्रेम कर सकते हैं, जी जी। भगवान को प्रेम नहीं कर पाते हैं लोग ना, इसीलिए तो वो तो आगे पीछे जाके उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ओके जी। हाँ। महाराज, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ ए लव कैन बी मिसडायरेक्टेड एंड मिसप्लेस्ड। प्रेम जो है मिसडायरेक्टेड एंड मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड, अगर वेश्या के प्रति प्रेम होगा तो ये मिसप्लेस्ड हो गया कि नहीं? यस यस सर, बिल्कुल हो गया। तुलसीदास जी का पत्नी पर इतना प्रेम था कि उसके बिना रह नहीं सकते थे। जी। बिल्व मंगल जो है वेश्या के इतने प्रेम में था कि वो क्या क्या नहीं कर सकता था। यस। और फिर वेश्या ने कहा था कि तुम इतना मेरे पे प्रेम है कि इतना हाँ। तूफान को छोड़ कर आए और मगर के ऊपर हो बैठ के आए। अगर इतना प्रेम भगवान के प्रति होता तो तुम महान हो जाते। बस उसने भगवान के लिए कर दिया। बराबर। तो हमारा जितना भी प्रेम है ना संसार में, अभी सबका सब मिसप्लेस्ड है। यस। अभी सारा बिजनेस में लगा हुआ है हमारा दिमाग। जी 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 बिल्कुल। सारा संसार की व्यक्ति पे नहीं है, तो भी जॉब पे लगा हुआ है, किसी किताब पे लगा हुआ है। ये सारा का सारा प्रेम भगवान के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये सब का सब मिसप्लेस्ड प्रेम। यस जी। यस। नेक्स्ट, that ideal which men and women commonly worship is what is in themselves. Every person projects his or her own ideal of the outside world and kneels before it. That is why we find that men who are cruel and bloodthirsty conceive of a bloodthirsty God because they can only love their highest ideals. Now my question is there any bloodthirsty God? अरे एक काली जो है ना, काली हाँ बिल्कुल जीवान निकाले हुए है जी। वो तो पाठा खाती है ना, यानी बकरा खाती है, भैंसा खाती है कि नहीं? बकरे की बलि होती। बकरे की बलि होती है। तो हाँ तो फिर तो सब बंगाली लोग बकरा खाते हैं, तो उन्होंने ऐसा हमारी देवी भी तो है ना, बकरा खाने वाली देवी होगी। मनुष्य के मन का ही है। तो फिर जैसा हम खाते हैं, बकरा खाने वाली है तो बकरे वाली होगी। जो लोग भैंसा नहीं खाते ना, तो उनकी जो देवी है ना वो भैंसा नहीं खाएगी, वो बकरा ही खाएगी जी। तो ये तो हो गया। तो जैसा हम आप सोचेंगे, अगर क्रूएल होंगे तो वो भी बनाएगा। जो डाकू होते हैं, तो डाकुओं की जो वो होती है ना, वो काली जो होती है, विकराल काली, भयानक काली होती है। जी। ओके जी जी महाराज जी, बराबर। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन तो हो गया मैजिस्ट्रेट गॉड का। ठीक है। अच्छा, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, दिस हॉल इज द गॉड ऑफ भक्तास and all the other gods, fathers in heaven, rulers or creators, and all the theories and doctrines and books have no purpose and no meaning for them, seeing that they have through their supreme love and devotion risen above those things altogether. Now my question is, are these all not the path to reach supreme love? Yes, they are all paths. हाँ, ये आप भी कोई सुप्रीम लव के ये अलग अलग पाथ हैं, थोड़े थोड़े पाथ हैं। ये आपने जो प्रश्न किया ना,
हाँ ये क्या बताया तुमने, जो पढ़ा उसको समझा कि नहीं? महाराज जी मैं फिर से पढ़ता हूँ, 9 लिखा है। हाँ, दिस होल इज द गॉड ऑफ भक्तास and all the other gods, fathers in heaven, rulers or creators, and all theories and doctrines and books have no purpose and no meaning for them. No purpose and no meaning for them. Seeing that they have their own supreme love and devotion risen above those things altogether. मैंने तुम उससे क्या समझे? हाँ महाराज जी मैं ये समझा कि दिस इज नॉट नेसेसरी, द बुक्स आर नॉट यूजफुल फॉर द भक्तास। ठीक तो है। हाँ स्वामी ठाकुर बोलते थे मेरे किताबों से क्या पढ़ना, करना लेना नहीं। यस जो भक्त लोगों के लिए, उनके लिए इतने सब राज, भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और दंड देता है नहीं करता है, इससे क्या लेना देना भक्त के लिए? ओह यस वो जरूरत हो तो उसको लो, अगर तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओ, अगर सुप्रीम लो, भगवान से प्रेम होगा तो ये सब किताबें विताबें छोड़ दो, सब जी थ्योरी छोड़ दो, नहीं तो रखो उसको, नहीं तो छोड़ दो, जी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा राइट यस हाँ महाराज जानने के लिए भगवान को तो हम लोग शास्त्र के थ्रू ही जान सकते हैं, मतलब ज्यादा प्रेम होने के लिए वो उनके बारे में जानना भी तो जरूरी है। हाँ, जब प्रेम हो जाएगा तब छोड़ दो ना, तब बिल्कुल छोड़ने का। हाँ। yes now next question, he arranges us first in one way and then in another, and we are consciously or unconsciously helping in his play. It means that we do in the universe is not done by us, it is all by him. If so, for all good and bad deeds we should not be responsible and punished. ये तो ईश्वर की लीला है और ईश्वर करवाता है और हम करते हैं, तो फिर इसमें हमारी क्या? हाँ, तो तुम्हारे को चाटा जब लगेगा तो चुपचाप बोलना कि ये ईश्वर ने लगाया। जी ईश्वर भी पनिशमेंट पे, चाटा भी तो ईश्वर ही लगा रहा है, यही तो बोल रहे हो तुम ना? यस यस हाँ, तो ईश्वर चाटा लगा रहा है, तो इसमें आपको क्या क्या आपत्ति क्या है आपको? यानी हमने सब शरणागति जब कर दी ना, हाँ तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने सब शरणागत कर दिया है। हाँ, तो फिर अगर तुमको आपको कड़वी दवाई, कड़वी अगर ककड़ी कड़वी मिल जाए तो चुपचाप खा लेना। ओके, यानी ये शरणागत का भाव है पूरा। शरणागत इतना आसान नहीं है भाई। नहीं, ये जो 2 लाइन है वो शरणागत की लाइन है, ये मेरा पूछना है। अरे शरणागत इतना आसान नहीं है, बोल रहा हूँ। गिरीश चंद्र घोष था, उसने पूरा सब कुछ शरणागत कर दिया था। उसने तो बड़ा पाप किए थे सारे जीवन। जी जी, शराबी था, कबाबी था, हत्या भी की थी। अब करे, अब मेरे बस का तो है नहीं, मैंने इतना पाप किया, शरणागत कर दिया। ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम्हारे पाप मैंने ले लिए। उसके बाद में उसके लड़के की मृत्यु हुई। यस, उसको चुपचाप सहन करना पड़ा कि भाई मैंने तो शरणागत कर दिया, मेरे बस का तो नहीं। बराबर जी। हाँ, शरणागति इतनी आसान नहीं है, कहने मात्र से हो जाता नहीं है। नहीं नहीं, तुम अच्छे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, बुरे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। जो आपके कपाल में होगा चुपचाप आएगा, आपको सहन करना पड़ेगा। अभी मेरे में संघर्ष है, तो अगर ठंड होती है तो मैं एसी रूम हीटर चला लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। शरणागत होंगे तो ठंडी गर्मी चुपचाप, सब प्रभु की इच्छा। इतना आसान नहीं है, उच्चतम स्थिति है भाई जी। भगवान ही जो है दंड देते हैं, भगवान ही जो है वो इनाम भी भगवान ही देते हैं। Yes, Maharaj. Now, next question is, Christian mothers also may take up the idea of that they are Christ's mothers, and it will bring to the West the knowledge of God's divine motherhood, which they so much need. महाराज जी, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया
इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। आखिरी जो 4 शब्द लिखे, which they so much need, which they so much need। हाँ, उनको इतनी आवश्यकता है इस चीज की, ये बात कही स्वामी जी ने। क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट को बच्चा समझकर ऐसा हाँ। वात्सल्य भाव का प्रेम करने की बहुत आवश्यकता है। वो अगर करें तो उनको अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं करते। ओके, राइट राइट राइट। And next, last question is Madhur Bhav. The sadhak feels that he is Krishna's Radha and Gopi, and his behavior becomes female, though he is male or female. He forgets himself as man or woman. Am I correct? ये जो मैंने हाँ, ऐसा है कि वो राधा, अपने आप को राधा या गोपी समझता है, तो पुरुष होते हुए भी अपने को राधा और गोपी समझेगा। ये तो पुष्टि मार्ग है ना तुम्हारा, पुष्टि मार्ग तुम तो जानते हो। जी महाराज जी, मेरा यही पूछना था कि ये जो मेरी सोच है करेक्ट है? हाँ ठीक है, ये पुष्टि मार्ग ही तो है जी। राइट महाराज जी, बस। हाँ, और उसमें यही, हाँ ठीक है। हाँ जी महाराज, पुष्टि मार्ग क्या है? वही 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 भागवत में मधुर भाव का भगवान से प्रार्थना करते होगा। यानी ये वैष्णव वल्लभाचार्य के संप्रदाय है ना जी, वल्लभ दिलीप भाई, वही है ना? जी महाराज जी, वही है वल्लभाचार्य का। वल्लभाचार्य ने ये पुष्टि मार्ग किया है, यानी भगवान को मधुर भाव से प्रार्थना करना। हाँ बस। तो ये जो है इसको पुष्टि मार्ग बोलते हैं। जी ये एक वल्लभाचार्य का मार्ग जो है पुष्टि मार्ग कहलाता है। हाँ ठीक है जी महाराज। हाँ। राम। अच्छा भाई, सतीश वेग, सतीश वेग। Maharaj, first question, page 88. To worship the God for the sake of salvation or other rewards equally degenerate. At page 91, Swami says, the highest form of love is worship of all comprehending God without any desire or fear. All other forms of bhakti are only stages on the way to reach him. Maharaj, Bhagwan in Gita says that all 4 types of bhaktas are dear to me. That is Arthi, Artha, Jigyasu and Jnani. My question is our desire for liberation also comes in the category of lower bhakti? अरे उसकी चिंता इतनी जरी मत करो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। अपनी इच्छा भक्ति की मुक्ति की इच्छा भी नहीं करना, ये ना उच्चतम स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक महाराज। भक्त लोग तो ऐसे कहते हैं, न तो हम काम ये राज्य में राज नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, पुनर्भव यानी पुनर्जन्म होने की मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं कहता हूँ संसार के समस्त प्राणियों के दुख नाश होवे, ये भाव भी करते हैं वो लोग। तो ऐसी उच्चतम स्थिति होती है। ये तो ये उच्चतम स्थिति में ये लिबरेशन की भाव नहीं रहता। जी महाराज जी, बिल्कुल नहीं होता। जी जी। Does it also come in the way of parabhakti? उच्चतम पराभक्ति में नहीं है, ये तो बोल रहे हैं। जी जी जी। ये पराभक्ति में लिबरेशन का प्रश्न भी नहीं है। नहीं। प्रेम करना बस बस बस। प्रभु जन्म जन्मांतर तक मैं प्रेम करूंगा तुमसे। पराभक्ति में यहाँ पे ये लिबरेशन का बात ही नहीं आता। राइट राइट महाराज, राइट महाराज जी। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज 89, the commandment, do not take the name of the Lord thy God in vain. What does it means महाराज? नहीं, ये डू नॉट मेन यानी क्या है कि भाई कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने से ये मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा है ना, कहते हैं ना जी। वो ये यहाँ पे जीसस क्राइस्ट इस प्रकार कहते हैं, फालतू में ऐसे भगवान का नाम मत लिया करो। जी जी महाराज। डोंट टेक द नेम ऑफ लव व्हेनेवर, जब भी चलते फिरते कि भगवान की कसम खा के कहता हूँ, ऐसा नहीं करना। भगवान के नाम जब भी हुआ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं भगवान के नाम से बोलता हूँ कि मैं ये काम करूंगा।
ऐसा भगवान ये जीसस क्राइस्ट बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक ठीक महाराज। महाराज इसका ये मतलब है कि इज टेकिंग द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी लव फॉर हिम? बिना यस लव यस, हाँ कुछ नहीं है तो जबरदस्ती भगवान का नाम ले रहे हैं। ना, प्यार तो नहीं है लेकिन नाम ले रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। वो कोई फायदा नहीं है। जी। और बैठे बैठे जप कर रहे हैं, कितना है 1000 जप किया, अरे 1 मिनट भी मन का ध्यान नहीं रहा वहाँ पे। ये क्या है, ये टेकिंग द नेम ऑफ गॉड विदाउट एनी वो किसी को Without फायदा love. नहीं। जी, हाँ। जी। Thy God in vain. हाँ, मैंने इतना जप किया लेकिन मन तुम्हारा कहीं पे था, तो व्हाट इज द यूज ऑफ यू टेकिंग नेम लाइक दिस? जी महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन पेज 94। विक साहब एक मिनट ठहर जाए, विक साहब एक मिनट ठहर जाए। जी महाराज जी। जी। हाँ महाराज जी, इसके अंदर आगे जो लिखा है, हाँ यस, हाँ बोलो। महाराज जी ये मैं पढ़ रहा हूँ। डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड thy God in vain, when the true lover of God laughs at. How can there be any blasphemy in the religion of love? उसके आगे जो लिखा है, the more you take the name of the Lord, the better for you. In whatever way you may do it, you are only repeating his name because you love him. तो महाराज जी ये फिर सेंटेंस और आपने जो उदाहरण दिया उससे ये कैसे मैच होगा? ये दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न है। हाँ, जीसस क्राइस्ट जो कहते हैं, ये जबरदस्ती भगवान का नाम नहीं लेना। ओके। और हम लोग तो कहते हैं कि 20,000 जप रोज किया करो। हाँ चाहे कैसे भी करो। जी जी जी। क्यों? अरे 20,000 जप करोगे तो कहीं थोड़ा सा तो भगवान का ध्यान आएगा। बिल्कुल, इसलिए राइट। तो ये दोनों 2 प्रकार की चीजें हैं, अलग अलग संदर्भ में कही गई। राइट महाराज, ओके जी महाराज। जी महाराज। Activity is always with us for the fulfillment of certain want, and want always presupposes imperfection. But God is perfect. Maharaj, Swamiji has done so much activity himself and asking us to do the same. Is our activity born out of want? That is imperfection. अरे we are imperfect कि नहीं? We are imperfect. So we have to do activity. जी जी महाराज। We can't do without it. लेकिन जो यदि महापुरुष नहीं करेंगे तो और खराब हो जाएंगे, तमोगुणी हो जाएंगे। जी। ये उच्चतम सत्वगुणी क्रिया है कि जब बिना एक्टिविटी के रह सकते हो। अभी एक्टिविटी करो जो भी करना है, नहीं तो तमोगुणी हो जाओ। जी महाराज। लेकिन जो महापुरुष एक्टिविटी करते हैं वो लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। हाँ, वो दूसरी बात हो गई। वो दूसरी बात हो गई। जी। अच्छा भाई सुबीर मजूमदार। प्रणाम महाराज जी, जस्ट 1 मिनट महाराज जी। महाराज जी, लाइक कुंडू जी सेड कि आर्टिकल पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वन नोज सो लिटिल अबाउट लव एंड हाउ लिटिल वी प्रैक्टिस दिस डिवाइन लव। तो और आप भी कह रहे थे कि ये बहुत ही एक उच्चतम आर्टिकल है पराभक्ति पे जो स्वामी जी ने लिखा है, ये हम लोग ये रियलाइज करते हैं। तो इसके बाद ये सवाल पहला वाला मेरा जो है महाराज जी, ट्रायंगल ऑफ लव वाले चैप्टर से स्वामी जी says, talking about one of the angles, it consists of no bargaining, no begging in divine love. My question is, can we ask for vivek, vairagya, purity, bhakti, etc. for God, or is this also begging? नहीं, this is all right. This is all right. Definitely you can ask. तो जो अब मेरे आध्यात्मिक जीवन में जिससे उन्नति होगी उन चीजों को मांगने में कोई उसको बेगिंग नहीं माना जाए। कुछ नहीं। ओके। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी, वो सेकंड एंगल पे है, फियरलेसनेस। समटाइम्स वन इज एंग्शियस फॉर आवर नियर एंड डियर वंस फॉर देयर हेल्थ और अदर प्रॉब्लम्स। नाउ एंजाइटी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ फियर। हाउ डज वन ओवरकम दिस? व्हाट एटीट्यूड शुड वन अडॉप्ट? अरे भाई, ये एटीट्यूड है ना, टू गो बियॉन्ड एंजाइटी इज ए वेरी हाई स्टेज। जी।
हाँ, तो वो अब जैसा भी हो, यदि प्रेम हमारा बढ़ता चला जाएगा तो फिर पता ये लगेगा कि भाई जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, हमें चिंता करने से क्या होगा। या Right. फिर जैसा भगवान ने गीता में कहा है कि सारा काम करो, पूरा संघर्ष करो, युद्ध करो, लेकिन उसका लाभ अलाभ जो है उसको छोड़ दो। तो गीता का एंग्जाइटी दूर करने का तो उपाय गीता में ही भगवान ने देखा है जी कि जी पूरा शरणागत होकर संघर्ष करो। तो गीता में तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी दूर करने का ही प्रोग्राम है बस गीता में। जी 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 वही करो और क्या है। ओके एंड lastly question है मेरा, can you please give an example of a devotee who has shanta bhav, and secondly, is this attitude of shanta bhav something like बनत बनत बनी जाए जो आप कहते हैं अक्सर? भाई ऐसा है कि आई डोंट नो, शांत भाव का एग्जाम्पल जैसा है कि वो तो ये कहते हैं कि जब भगवान जंगल में गए ना, राम जी 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 तो बीच में वहां पे बहुत सारे संत लोग तपस्या करते हुए रहते थे, और उन लोगों का शांत भाव, जो वहां पे ऋषि मुनि जो रहा करते थे जंगल में, जी वो लोग शांत भाव से जनरली पूजा करते भगवान। ये एक प्रकार का, कहीं मैंने एक पढ़ा था कि शांत भाव के एग्जाम्पल है ये जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि जो भक्ति तो करते हैं लेकिन शांत भाव से करते रहते, और कोई भाव नहीं, दास से वात्सल्य कुछ नहीं, वो भक्ति। मतलब इस भाव में भी तीव्रता रहती है महाराज? तीव्रता हो, ये तो बड़ा या मुश्किल है भाई, हम समझना बड़ा मुश्किल है हम लोगों को, जब तक हम नहीं करेंगे खुद भी नहीं समझते। अवश्य रहती होगी। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न बहुत बहुत सभी चीज है कि जी शांत भाव में तीव्रता कैसे हो। जी जी तो अवश्य होती होगी शांत भाव। दास्य भाव में तो सब, तब हनुमान जी में तो तीव्रता, इंटेंस तीव्रता थी। जी जी और शांत भाव में भी है कि वो लोग राम जी से कहते हैं कि भाई, खुद ही राम जी को कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन करके बड़ी खुशी हुई, हम शांत भाव से कर रहे हैं। तो भगवान जी प्रसन्न हुए थे उनकी निष्ठा से, और इसलिए उनको उन्होंने दर्शन दिए। इस प्रकार का एक एक्सप्लेनेशन दे। अच्छा महाराज ठीक है। शांत और भाव ये में तो बनत बनत बन जाए ना, हाँ हाँ अंका तारे बंका तारे, तारे सुनत कनाई कसाई, सुहा पड़या। तो ये बनत बनत बन जाए जो है, जी जी इसको मैं नहीं समझता कि ये भक्ति से कुछ लेना देना है। ओके भाई, जी आज मैं थोड़ा जूम पे बैठा हुआ हूँ। जी ओके ओके, एंजॉय योर लॉक। नहीं, इसमें महाराज जी आर्टिकल में स्वामी जी इस तरह बोल रहे हैं शांत भाव को समझाने के लिए, when a man worships God without the fire of love in him, without its madness in his brain, when his love is just the calm commonplace love, a little higher than mere forms and ceremonies and symbols, but not at all characterized by the madness of intensely active love, it is said to be Shanta. अब भाई अब तो the answer is there already। तो इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है महाराज। मेरे में तो कोई भाव ही नहीं है, भक्ति है ही नहीं, मैं क्या बताऊं। महाराज जब सब There is nothing डिजायर्स, like there is nothing महाराज like जब love in me। क्या बोल रहे हो निवेदिता? मैं बोल रही अगर सब मन के सारे डिजायर्स वगैरह सब चले जाए, शरणागति हो जाए तो ही शांत भाव आ सकता है। भाई अब मैं जाने रहे, स्वामी जी ने जो लिखा है उसको देख लो। स्वामी जी तो बोलते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, शांत जी। भाव है। हाँ। जी महाराज, ठीक है। दैट्स ऑल महाराज, प्रणाम महाराज। चलो निवेदिता। जी महाराज, पहला प्रश्न का आपने उत्तर दिया है
the desire for salvation is not included in common desire, then why should seekers will not ask for it? ये तो आपने बताया है. मैंने कहा है हाँ, ये आपने. दूसरा प्रश्न है, what method we should follow to remove fear and inferior complex from us in bhakti? क्या what क्या है? What Infinity complex. method we should follow to remove fear and inferior complex from us? भक्ति में जैसे हम माँ से प्यार करते हैं तो माँ से हमको डर भी लगता है, प्यार भी करते हैं, तो ये फियर एकदम हटा कैसे सकती, ये मेरा प्रश्न है. ऐसा है कि जब भक्ति शुरू में भगवान के प्रति भक्ति जब बढ़ती जाती है तो फियर धीरे धीरे चला जाता है, अगर भक्ति करें तो. और दूसरा है ऑफ कोर्स वो तो ज्ञान का मार्ग है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, तो वो तो फिर ज्ञान मार्ग हो जाता है, ये भक्ति नहीं होती. लेकिन अगर आप आगे चलते रहे ना तो धीरे जो भी भक्ति हो उसमें थोड़ा सा भगवान के प्रति थोड़ा डर भी हो, तो अगर ठीक ठीक भक्ति करते रहेंगे तो एक बाद में वो चला जाता है. जी हुआ क्या? क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? जी. तीसरा प्रश्न है महाराज. महाराज इस बीच में मेरा क्वेश्चन था. हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे फियर इसलिए होता है कि हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, हमारे मन में ये डर रहता है कि हमसे कोई गलती तो नहीं होती, हम गलती तो नहीं कर रहे, गलती, ये इस मत का फियर रहता है. इसका नहीं कि सजा देंगे भगवान, जिस बात का. नहीं तो प्रश्न क्या है? अरे भक्ति होने पर ये कभी कभी तो फियर जाना पड़ेगा. उसके बाद में प्रभु तुम मुझे नरक में डालो या स्वर्ग में डालो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम मेरे प्रियतम हो, चाहे तुम्हें किसी भी कार्य करो. यस. हाँ. इसमें ये मजिस्ट्रेट गॉड वाला तो भाव नहीं है, ये भाव होता है कि हमसे गलती हो रही है कहीं, जहाँ हम पूर्ण शरणागति नहीं कर पा रहे. हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही है, इसमें क्या बात है. अगर हम शरणागत भक्ति अभी नहीं है हमारे को, हमें ये तो अच्छा है कि मेरे को प्रभु मेरे में पूरी भक्ति नहीं है, आप मेरे को भक्ति जरा दो. जी मेरे हमें भगवान से नहीं, हम अपने आप से डर लगता है. नहीं वो तो दूसरी छोड़ो. हमारा तीसरा प्रश्न जो है एक आर्टिकल में लिखा है, वो जरा please explain, everyone admits the truth of saying that a lover sees Helen's beauty on the Aesop's brows. ये so क्या क्या रेफरेंस है? क्या है कि हेलेन जो है वो सबसे सुंदरी लड़की है, औरत है. और इथोप जो है ना, वो जो है ये अफ्रीकन जो निग्रो है वो सबसे कुरूप. ओह अच्छा अच्छा. हाँ, तो जो प्रेमी है वो अपनी प्रेम जो करता है ना, जो प्रेमिक है वो जिसको प्रेम करता है उसको अगर चाहे कैसी भी कुरूप को लड़की को भी ना, उसको लगती है कि ये सबसे सुंदर है. ये इसमें दुनिया में मुझसे सुंदर और कोई नहीं है. तो जो जिसको प्यार करता है उसको सर्वश्रेष्ठ लगता है. जैसे आपने बताया था लैला मजनू का. क्या बताया था मैंने? आपने बताया था ना मजनू की आंख में लैला सुंदर थी, लैला वैसे कुरूप इतनी सुंदर नहीं थी, काली. मेरे को मैंने पता नहीं, याद नहीं आया कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम. अच्छा, चौथा प्रश्न है ये मतलब पेज 91 फर्स्ट पैरा से, highest form of parabhakti is the worship of such and all comprehending ideals. All other forms of bhakti are only stages on the way to reach it. तो ये जो ये अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक. क्या बोला है? Highest form of parabhakti, the worship of such and all comprehending ideals. All other forms of bhakti are only stages on the way to reach it.
यानी क्या है कि सबको प्यार करना उच्चतम प्यार जिसे कहते हैं ना। आप जैसे पवारी बाबा हैं, हाँ हाँ जी, पवारी बाबा है तो जो डाकू भी आया, चोर भी आया, तो उसको भी उन्होंने भगवान ही समझा। हाँ हाँ तो मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए। वो जो है वो भगवान ही, जिसको मैं प्यार कर रहा हूँ, वही सब कुछ हो गया है। जहाँ देखेंगे उस वहीं पे भगवान करेंगे। वो जी। सबको देख प्रेम करना, सबको देना। इसका एग्जाम्पल मैं पवारी बाबा के सिवा मेरे को और कोई एग्जाम्पल नहीं मिल सका। और वो क्या ठीक। स्वामी जी बोलते हैं कि सबसे सब कॉम्प्रीहेंस, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ यानी सर्वत्र भगवान को देखे बिना ये कैसे समझाए, मैं समझा नहीं सकता। जी महाराज। देवाशीष, हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ भाई बोलो। हेलो महाराज जी, हाँ can you बोलो। hear me? हाँ हाँ एक हाँ मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ महाराज जी, ये जो थर्ड एंगल, जिसने एंगल जो है ये मुझे समझ में नहीं आया। ट्रायंगल ऑफ लव में पहला तो लव है, सेकंड इज फियर, एंड थर्ड वन मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो बता रहे हैं कि थर्ड एंगल ऑफ लव ट्रायंगल इज दैट लव नोज नो राइवल, for in it is always embodied the lover's highest ideal। ये समझ में नहीं आया कि ये राइवल का सवाल कहाँ से आता है। हाँ बोलो। ये third angle of the love triangle is the love knows no rival, for in it is always embodied the lover's highest ideal। True love never comes until the object of our love becomes to us our highest ideal। ये समझ में नहीं आया महाराज जी। यानी जो प्रेम जो है ना उच्चतम पराभक्ति में, प्रेम ही सर्वोच्च है, यही तो है ना। बिगनिंग इट इज अ प्ले ऑफ ईगो। का क्वेश्चन है क्या? नहीं वो नहीं है तुम्हारा। नहीं, इसमें ईगो का अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नहीं ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ऐसा है ये ज्ञान, भक्ति, विवेक, श्रद्धा, दे आर गुड। नहीं तुम्हारा क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो उसमें क्या है। ये जो है महाराज जी थर्ड क्वेश्चन में मैं सेकंड एंगल पढ़ रहा हूँ मैं। ये जो थर्ड एंगल जो बताया ना, ये थर्ड एंगल ऑफ लव ट्रायंगल इज दैट लव नोज नो राइवल, for in it is always embodied the love's highest ideal। ना तो उसको क्या है कि उसका जो व्यक्ति है, जैसे पवारी बाबा का एग्जांपल भी लो तो उनके देयर इज नो राइवल। उनके यहाँ पे चोर जैसी कोई चीज नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। दैट इज द पॉइंट। जो भक्त है सब जगह भगवान ही देखेगा, तो उसके लिए कोई राइवल नहीं है। मैं हूँ और मेरे जैसा दूसरा कोई भक्त है, कंपटीशन की बात भी नहीं है। ये बनने का। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा ओके। बताया कि हाईएस्ट, इसमें बताया कि द ट्रू लव नेवर कम्स अंटिल द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लव बिकम्स टू अस आवर हाईएस्ट आइडियल। ट्रू लव, सच्चा प्रेम जो है ना, हाँ वो स्वामी जी जो कह रहे हैं ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। यानी उच्चतम भक्ति की बात कर रहे हैं कि जब तक प्रेम ये नहीं होवे कि जो जिसको मैं प्रेम कर रहा हूँ वो भगवान है, ऐसा उच्चतम भाव जब तक नहीं होवे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। ओ अच्छा ठीक है महाराज, समझ में आया महाराज जी। महाराज जी क्वेश्चंस तो काफी थे, मैं उसको कम कर दिया। एक तो क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन अपने सुबीर ने पूछा था कि वी आर प्रेइंग एवरी डे टू गॉड टू गिव अस नॉलेज, भक्ति, विवेक, श्रद्धा, प्योरिटी, आर दीज आल्सो वर्शिपिंग गॉड टू बेस्टो ऑफ फेवर्स ऑन अस? आपने अब तो बोला ना, अब तो ना ही बता दिया आपने। ये जो प्रेयर्स जो है ये
these are not God to bestow favors on us, ना? आवाज नहीं आ रहा है। Hello, hello, can you hear me, Maharaj ji? Hello, हेलो, हाँ महाराज जी, can you hear me? अभी आवाज आ रहा है? बोलो। बोला कि पहला क्वेश्चन जो था उसमें था कि we are praying every day to God to give us knowledge, bhakti, vivek, shraddha, purity. Are these also worshipping God to bestow favors on us? फिर से बोलना। ये तो we are praying every day to God to give us knowledge, bhakti, vivek, shraddha and purity. Are these also worshipping God to bestow favors on us? No, No, पता तो this is all right. आपने This you ऑलरेडी can बताया। आपने already बता दिया। मैंने डिस्कस कर दिया इसको तो। हाँ, सुविन ने पूछा था, आपने बता दिया है। तो second question, I'm quickly going through कि how bhakta comes to know that he is lovable. Bhakta has to know his gunas or qualities. इसको पेज नंबर 88 में है, love knows no reward. Love is always for love's sake. The bhakta loves because he cannot help loving. तो मेरा क्वेश्चन था, how bhakta comes to know that he is lovable? Bhakta has to know his gunas or qualities. ये क्या है कि बिकॉज ऑफ संस्कार है, Oh, संस्कार के बिना नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसा है ना कि उनके संस्कार के कारण क्या प्रेम तो सबके अंदर रहता है। हाँ Everyone has got love. हाँ। We can love. कभी किसी न किसी चीज से तो हम प्यार करते ही हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जो है ये संस्कार के कारण होता है। अच्छा, थैंक यू महाराज, थैंक यू। महाराज मैं एक शेयर करूं? हाँ बोलो। अगर हम गीता का जो विभूति चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो उसमें कई तरीकों से हम भगवान को प्यार करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो तो ऐसा है कि आप, वो मैंने कहा ना, ये संस्कार की बात हो जाती है। हाँ जी। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो लीलाएं, इतनी सारी भगवान की लीलाएं हैं। हाँ, उनका वर्णन ही, उद्देश्य इनका ये है कि लीला पढ़ के भगवान के प्रति प्रेम होवे। प्रेम कर। हाँ, तो वो संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। अच्छा, पेज थर्ड क्वेश्चन, पेज मैं स्किप कर रहा हूँ, 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। 5 नंबर में है, पेज 89 में, इफ अ मैन थिंक्स ही इज अ लिटिल नथिंग, fear will surely come upon him, and the less you think of yourself as an insignificant person, the less fear there will be for you. तो ये है, does it not reduce one's ego? If the man thinks that he is an insignificant person and God is the doer, the egoistic person is fearless. Sometimes we see a person with lot of money talks fearlessly, takes decision without caring much about others or other things. Is it not the ahankar, ego, pride for money which makes him fearless? हाँ, तो क्या हुआ? There can be various ways in which a man can become fearless. It is not a question of fearless. Being fearless is one of the conditions of being prem. प्रेम के द्वारा भी आदमी fearless हो जाता है. There are so many ways in which a man can become fearless. यही तो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे कोई धन के द्वारा fearless हो जावे तो केवल fearlessness नहीं है, उसके बाद में पहले भी तीन ट्रायंगल की बात हो रही है ना। हाँ। तो fearless तो आदमी जो है युद्ध करने वाला भी आदमी fearless होता है। हाँ, तो वो भक्त थोड़ी हो जाता है। अच्छा। So fearlessness does not make that everyone bhakta. अच्छा। You don't understand the point. There are three triangles. Three triangles are there. Three angles are there. तीनों को होना चाहिए। तीनों को होना चाहिए, तभी तो भक्त होगा। हाँ। है भगवान। तो fearless तो आदमी कई प्रकार से हो सकता है। हाँ। तो उससे क्या होता है? मैं fearless हो गया तो मैं भक्त हो गया, ऐसा थोड़ी होता है।
तो ऐसा that kind of fearless will not come to devotee's life, no, ego, money and all that things, because that also becomes fearless, but that thing doesn't count here, na, the love of God में, na. That question does not arise here. अच्छा ठीक है महाराज जी, से समझ में आया महाराज जी. This grand question number 7 में है, page 91. This grand ideal of the religion of love is worshipped and loved absolutely as such without the aid of any symbols or suggestions. My question is, what about the rituals? What is the place of rituals in the love of God? Does it develop the love of God? शुरू में रिचुअल्स जो है वो मदद करते हैं. शुरू में रिचुअल्स मदद करते हैं. ठाकुर ने नहीं किया था कि आरती पूजा, माँ की पूजा. हाँ, ठाकुर ने की थी माँ की पूजा. और हमारे यहाँ तो करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं कि नहीं. तो पूजा जो है वो तो उससे प्रेम बढ़ता है, इसीलिए तो करते हैं. हाँ, वेदी भक्ति का, ये तो वेदी भक्ति का अंग है भाई. इसमें प्रश्न का क्या उठता है यहाँ. अच्छा ठीक है महाराज, समझ में आया महाराज जी. The next question is, at last the aspirant begins to think that it is vain to try to realize the ideal in external objects, that all external objects are as nothing when compared with the ideal itself, and in course of time he acquires the power of realizing the highest and the most generalized abstract ideal entirely as an abstraction that is to him quite alive and real. When the devotee has reached this point, he is no more impelled to ask whether God can be demonstrated or not, whether he is omnipotent or omniscient or not. Is it the realization of the self that is mentioned in this passage? अरे do it, then you realize. बोलने से क्या होगा? Okay. We do not even do ritual. Ritual करते करते भगवान में प्रेम आएगा और realization होगा. What is the point in this? Is a purely theoretical question. उसका क्या importance है? हाँ. Okay महाराज जी, okay. हो गया? हाँ, और एक है महाराज जी, ideas of reverence and obedience are necessary for formation of character. But when character is formed, when the lover has tasted the calm, peaceful love and tasted also a little of its intense madness, then he need talk no more of ethics and discipline. My question is the formation of character necessary to develop love of God? बिना कैरेक्टर के क्या, के बिना बदमाश होगा, कैरेक्टर प्रेम होगा, बिना प्रेम के क्या, उससे क्या कोई आदमी हो सकता है? डाकू लोग का भी तो प्रेम होता है महाराज जी. नहीं, वो कहाँ प्रेम होता है? अगर सच्चा प्रेम होगा तो बड़ा भक्त हो जाएगा वो. बड़ा भक्त होगा तो बड़ा कैरेक्टर होगा उसका. जितना बड़ा भक्त होगा उतना बड़ा कैरेक्टर होगा. एक प्रकार का कैरेक्टर है उसका. अच्छा. हाँ, वो उसने क्या, वो अपनी जान दे देगा. यदि डाकू यदि बनेगा तो भगवान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा. हाँ, इसका मतलब तो हमें कैरेक्टर. डाकू, अर्जुन जो है वो भगवान का भक्त था तो उसने युद्ध किया था. तो हाँ, फिर हाँ, इसका मतलब हमें कैरेक्टर पहले बिल्ड करना पड़ेगा. अरे बाबा, कुछ तो करो, या तो भगवान से प्रेम करो या कैरेक्टर बिल्ड करो. दोनों में से कुछ करो या दोनों करो. बार बात करने से क्या होता है? हाँ, ठीक है महाराज जी. Next question है, the whole universe is to him full of love and love alone. That is how it seems to the lover. Just wait. हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ महाराज, सुनाई दे रहा है. मैं तो anyway सुना, बोलिए. हाँ, last question है महाराज जी. The whole universe is to him full of love and love alone. That is how it seems to the lover. So when a man has this love in him, he becomes eternally blessed, eternally happy. Can you give us the example of such a percent? कोई है ऐसा कोई? ठाकुर थे. अच्छा. उसके बाद गोपालर माँ थी.
ये तो प्रेम से भरपूर थे। गोपाल की माँ जानते हो ना, बाल गोपाल को प्यार करती थी, प्रेम से हाँ, भरपूर हाँ, थी। जहाँ जाती थी वहाँ प्रेम ही प्रेम था, ले जाती थी। जब सबसे प्रेम कर सकती थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये तो ठाकुर के महाराज जी। जीवन में तो बहुत सारे दृष्टांत मिल जाएंगे। जी महाराज जी, जी महाराज जी। ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अच्छा। प्रणाम महाराज जी। और तो कोई नहीं आए? सब हो गए क्वेश्चंस? और कोई नहीं? तो महाराज जी एक आधा क्वेश्चन पूछ लें क्या, परमिशन हो तो? अरे नहीं नहीं, कितना सारा पूछोगे? अब हमको भी जरा शांति करो। मैं दूसरा कोई होता तो बात कर तुम्हारा टर्न हो गया भाई, कितना करोगे? ये तो आपके प्रति हमारी भक्ति है, इसलिए हम पूछते हैं। ये भक्ति है या उल्टा है? महाराज लास्ट अच्छा, आज वीक अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कुछ वो हो गया है, तो हम अपने देख नहीं पा रहे हैं। बातचीत कर रहा हूँ मैं, तो आपसे बातचीत हो जाएगी, लेकिन अपना जो दर्शन था वो हो चुका हम लोगों का। हो गए। ओके। कुछ बोलना है? क्या बोल रहे थे कुंडू? हाँ महाराज, लास्ट वीक महाराज रोगी नारायण की सेवा कैसे हुआ, कुछ बताएंगे? कौन का? कब का? आपने बोला था अच्छा, आप भी पिछली बार। हाँ महाराज। पिछली 22 तारीख को तो हाँ, स्वामी जी का जन्मदिन था ना। स्वामी जी का जन्मदिन था 14 तारीख को। तो वो तो कैलेंडर के अनुसार तो यहाँ पे परंपरा ये चल रही है कि स्वामी जी के जन्मदिन के बाद वाला जो संडे होता है वो, यानी उसको तो इमीडिएटली आफ्टर एक संडे था, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद में एक संडे के बाद में वो संडे होता है। उस दिन ये सेवाश्रम में जो हॉस्पिटल है उसमें जो पेशेंट है ना, तो उनको तो रोगी नारायण ही मानते हैं। तो उसमें उस दिन फॉर्मली जैसे रिचुअल करते हैं, जैसे एक मूर्ति की पूजा करते हैं ना, उस तरह से एक एक पेशेंट की पूजा की गई। अच्छा। हाँ, एक एक पेशेंट की, यानी एक तरफ से चालू किया। कुछ साधु लोग चैंटिंग करते गए, शन्नो मित्र शं वरुण, शांति मंत्र जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि सब शांति मंत्र करते चले गए। और बाकी जो हम सीनियर सन्यासी लोग थे, हम लोग एक एक रोगी नारायण के पास खड़े हुए थे, बैठे थे, वहाँ थे। हमारे पास में एक प्लेट थी, उसमें चंदन था, अगरबत्ती थी, दीपक था, और फल मिठाई वगैरह थी। एक कपड़ा भी था, कपड़ा इन्हें वुलन कपड़ा था। ये इतनी सारी चीजें थी। और हमने एक चंदन का टीका लगाया, उसके बाद गले में उसको माला पहनाई, उसके बाद में उसको जो पेशेंट था उसको अगरबत्ती जलाई दिखाई, उसके बाद उसका दीपक से उसकी आरती की, और उसके बाद उसको कपड़ा दिया, कपड़ा पहनाया, और वो जो फल थे वो सब उसके हाथ में दिए हैं। इस प्रकार से एक एक सब पेशेंट्स को किया। मैंने एक दो पेशेंट को मैंने किया, और दूसरे साधु लोगों ने सब किया, और सारे 150 पेशेंट थे, सबको ये प्रकार किया गया उस दिन। वाह। रिचुअलिस्टिक वर्चुअल वैसे रोज होती है, रोज योगी नारायण की पूजा हो रही है, खाना दवाई दे रहे हैं उनको, स्पॉन्जिंग पेशेंट को करते हैं, जो रेगुलर जो पेशेंट को टेक केयर करना पड़ता है ना, वो तो हो ही रहा है। हाँ, उसका यही है कि ये जो है रोगी नारायण की सेवा रोज ही हो रही है। आज जो है उसको रिचुअलिस्टिक करके बताया। ठीक। हाँ, एक बिल्कुल जैसे कर्मकांड जैसे कहते हैं, वैदिक भक्ति जैसे। प्रणाम। अच्छा, और कुछ? प्रणाम महाराज, मेरा क्वेश्चन है महाराज। हाँ। मैं भुवन बोल रही हूँ। हाँ, बोलो। हाँ, तो हमारे आसपास के लोग कभी हमें प्रशंसा करते हैं ना, तो हमारा ईगो बढ़ता है, और फिर अगर बुरा कहते हैं तो फिर हमारे को हेट्रेड की फीलिंग्स या फिर रिपल्शन की फीलिंग्स आती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कोई सजेशन बताइए, क्योंकि ये चीजें भक्ति के लिए तो हार्मफुल हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और भगवान की तरफ से हट जाता है। ये तो भगवान ऐसा है, गीता रोज पढ़ा करो, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ा करो। ये बातें तो मन में एक बार बिठानी पड़ेगी कि राग द्वेष से जो है वो बाधा बनने वाली है। राग द्वेष तो हमारे अंदर भरे हुए हैं, और पातंजल योग सूत्र के अंदर तो उसको
राग द्वेष के लिए तो उन्होंने क्या है कि वो यम नियम की बात कही गई है वहां पे, तो यानी वो हाँ जो जी, यम नियम को पढ़ो, उसमें हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, वहां तो बड़ी लंबी अपरिग्रह, चीज है। हाँ, तो ये सौच, वैल्यूज संतोष, है, हाँ, उनको वो जीवन सब, में हाँ, आपको डालना पड़ेंगे। देयर इज नो अदर वे आउट। कंटिन्यूअसली बात करनी अच्छा, पड़ेगी, यू ऑल कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट। हाँ जी. हाँ. So when such thoughts come, then can we just remind ourselves that Yes. Every day you must remind. we are a soul and Even we are before Atman. हमारा उद्देश्य जो है मेडिटेशन का, आधे पौन घंटे पूजा मेडिटेशन का उद्देश्य है कि ये वैल्यूज अपने को कॉन्स्टेंटली याद करनी है। चिदानंद रूप शिवोहम ये जो है उसको आप रेगुलरली याद कर लो और रोज पढ़ो उसको। न मैं हाँ द्वेष जी, रागो नमो लोभ मोह, मुझे राग द्वेष नहीं है, लोभ मोह नहीं है, ये भाव कर लो। हाँ जी. तो मतलब opposite feeling और positive feelings हम वापस देंगे। अगर वो if करना somebody ही is करना, rude, दैट इज व्हाट हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज देयर। हाँ जी, स्पिरिचुअल लाइफ इज मेंट फॉर दिस पर्पस ओनली। हाँ जी. ठीक, प्रणाम महाराज। अच्छा, ठीक है, सबको नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। प्रभा ओम शांति शांति शांति, शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम श्री राम राम कृष्णार्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। अंतिम मंत्र।